हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रामेटिक साइंस। उम्मीद है आप लोग सही हो, ठीक हो, राइट। इट्स मी अयन। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ द टॉपिक वेक्टर। सो लेट अस सी व्हाट विल बी आवर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशंस टुडे। So mainly we will have these four topics. Number one, unit vector. I think you have gone through lecture number 2. In lecture number 2, I have used a vector called position vector, and there I have used another vector called unit vector. Lecture 2 और lecture 1 का link description box में होगा, right? Second is dot product, cross product, and some numericals related vector algebra. So let's start with our first topic, that is concept of unit vector. So this is the definition of unit vector. Unit vector is basically a vector having unit magnitude, that is 1, used to specify a particular direction in space. That means unit vector is simply a normal vector, but its magnitude, that is value, is 1, and it is used to specify a fixed direction, right? At the case of 3D, that is three-dimensional Cartesian coordinate system, it is called three-dimensional Cartesian coordinate system. So along x-axis we have defined a unit vector as I cap, along y-axis it is j cap, along z-axis it is k cap. So what these three unit vectors signify? Suppose if I say the vector of a point is 2i cap, that signifies that if we try to go or if we try to reach to that point, we need to travel a distance of 2 unit along x-axis. Simple, take it easy. Like we have example, suppose we take here a point P, say 2, 3, 5, its coordinate. Then O is the origin, this vector is R vector, and what's the name of R vector? R vector का नाम क्या था? lecture 2 में था, yes, position vector. So here we can say position vector R equals to क्या होगा? 2i cap plus 3j cap plus 5k cap. ये जो वेक्टर टर्मिनोलॉजी है और वेक्टर एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इफ वी ट्राई टू रीच द पॉइंट P, अगर P पॉइंट तक रीच करना है, देन वी नीड टू ट्रैवल 2 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस लाइक दिस. दिस इज ओरिजिन 1, 2. सपोज दिस वन इज 2, देन 3 यूनिट अलोंग y एक्सिस लाइक दिस वन. Y-axis is in this direction, so 1, 2, 3. Then 5 unit along Z-axis, 1, 2, 3, 4, 5. Then we will reach this point, right? So this vector signifies a position, and this component 2, 3, 5 signifies the length or the unit we have to travel through axis. And these vectors I cap, j cap, k cap signifies along which axis we need to travel. I cap signifies along x axis, j cap along y axis, k cap along z axis, and the value of I cap, j cap and k cap is simply as written, unit, that is mod of I cap, mod of j cap, mod of k cap is 1. यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, राइट? ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ वी कैन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ एनी काइंड. ओके, सो नाउ सी वी हैव अ सिंपल सम. द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज गिवन बाय 2, 3, -4. फाइंड इट्स पोजिशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉइंट. सो हियर 2 is along x-axis, 3 is along y-axis, and -4 is along z-axis. So what will be the position vector? How we will write that? Here position vector
that is r vector will be 2 I cap, क्योंकि ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दिस डिफाइंस एक्स एक्सिस, ये सेकंड कोऑर्डिनेट डिफाइंस वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस, एंड ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है दिस डिफाइंस वैल्यू अलोंग जेड एक्सिस, राइट. सो 2 I cap 3 j cap, 3 j cap, and here it is minus 4 k cap. So this is the position vector. और क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग इट, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पोजीशन वेक्टर की तरफ जो यूनिट वेक्टर है, द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर वी नीड टू नो कैलकुलेट दैट, राइट. सो क्या लिखेंगे, नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर दैट इज आर वेक्टर, क्या होगा, आर कैप, फॉर्मूला है आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर. दिस इज द फॉर्मूला टू डिफाइन यूनिट वेक्टर. कैसे, वो जो वेक्टर है वो सिंपल आर वेक्टर बाई उसका मॉड, उसका वैल्यू. ओके, तो आर वेक्टर क्या है, 2 I cap प्लस 3 j cap माइनस 4 k cap. ये तो सिंपली आर वेक्टर है. और ये जो मॉड ऑफ आर है, मॉड ऑफ आर है मतलब ये जो आर वेक्टर है उसका वैल्यू, राइट. ये जो आर वेक्टर है उसका वैल्यू मतलब मॉड ऑफ आर. तो मॉड कैसे निकालते हैं इस टर्मिनोलॉजी से, सिंपली एक बड़ा सा रूट और ये जो आई कैप के आगे, जे कैप के आगे, के कैप के आगे कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके एडिशन. क्या बोला, रूट स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट प्लस एडिशन, राइट. तो ये तो 2 है तो पहले 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है. तो ये क्या आएगा, ये कैलकुलेट करके देखो, 4 4 से 16 बेसिकली क्या आता है 16, 9 एंड 4, इसको सिंपली ऐड करो लगभग 29, राइट. 16 4 20 एंड 9, दैट इज 2 बाई रूट ओवर 29 I cap प्लस 3 बाई रूट ऑफ 29 j cap minus 4 by root of 29 k cap. So this is the unit vector along r vector, right. अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोग होमवर्क करके सेंड करो, मुझे फटाफट मॉड ऑफ आर कैप निकाल के इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ. मॉड ऑफ आर कैप देखना, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, ठीक है. सो दिस वन इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट. सो हेयर इज अ चार्ट, वी हैव two process of multiplication of vectors. Number 1 is dot or scalar product, number 2 is cross or vector product. एक interesting चीज़ देखो, if we multiply 2 scalar, suppose 2 into 5 gives us 10, that means 2 is also a scalar, 5 is a scalar, 10 is a scalar. So scalar into scalar gives scalar, scalar into vector gives vector. ये please copy में note down करके रखो. Scalar into scalar is scalar, scalar into vector is vector, but vector into vector can be a scalar, can be a vector, right. जिस प्रोसेस में वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर आएगा दैट इज डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, और जिस प्रोसेस में वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर होगा दैट इज क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है. ये डॉट का हम कैसे फॉर्मुलाइज करते हैं, सपोज ए इज़ अ वेक्टर डॉट बी, ए और बी दोनों वेक्टर का डॉट हुआ, डॉट का ये सिंबल है एक बड़ा सा डॉट, इसका क्या आता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. मतलब सपोज दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज थीटा. तो ये है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है. इसको बाद में देखेंगे, पहले ये डॉट प्रोडक्ट कैसे करते वो पूरा लर्न करेंगे, ओके. सो हेयर वी हैव अ वेरी सिंपल सम. ए वेक्टर क्या है 2 I cap 3 j cap minus 5 k cap, वी वेक्टर 3 I cap minus 2 j cap plus 4 k cap.
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, दैट इज़ ए डॉट बी। तो पहले ए लिखा, फिर डॉट का साइन दिया, फिर बी लिखा। देखो कितना सिंपल आंसर है। इसको कैसी तरह याद रखना है, एक सिस्टम देख लो, आई कैप डॉट आई कैप जो है वो 1 है, आई कैप डॉट जे कैप 0 है, आई कैप डॉट के कैप ये भी 0 है। फिर से जे कैप डॉट आई कैप ये 0 है, जे कैप डॉट जे कैप इज़ 1, जे कैप डॉट के कैप इज़ 0। अच्छा, के कैप डॉट आई कैप इज़ 0, के कैप डॉट जे कैप इज़ 0, के कैप डॉट के कैप इज़ 1। इधर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, जब दोनों कंपोनेंट सेम होगा, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप, तभी रिजल्ट आएगा 1 होगा। तो हम लोगों ने ये जो 2 आई कैप है इसके साथ 3 आई कैप का डॉट किया, तो 3 2 6 होगा, और आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप इज़ 1, दैट्स वाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर क्या होगा, सिंपली 6, राइट। फिर 2 आई कैप के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, आई कैप डॉट जे कैप आएगा, इसमें आई कैप है इसमें जे कैप है, राइट। आई कैप डॉट जे कैप कितना, 0, तो ये 0 होगा। फिर आई कैप डॉट के कैप ये भी 0 होगा, मतलब आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा। इधर भी जे कैप मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3 इंटू -2 -6, के कैप मल्टीप्लाई होगा, -5 इंटू 4 दैट इज 20। सो दिस इज सिंपली अ डॉट प्रोडक्ट। और देखो यहाँ पर रिजल्ट जो आया -20 दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो अगर फिर से समझना है तो वीडियो को बैकवर्ड करो, धीरे से देखो, ओके। नाउ वी विल गो टू क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट में वही 2 एग्जाम्पल है, ए दिस वन, बी दिस वन। इससे पहले एक चीज़ जान लो, ए क्रॉस बी क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। मतलब अगर इस तरफ ए वेक्टर है, इस तरफ बी वेक्टर है, दिस वन इज थीटा, सो दिस वन विल बी द एन कैप। दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर प्रोड्यूस अनदर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर क्रिएट होगा जो ये दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा, दैट्स वाई एन कैप इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है मगर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। किसके साथ परपेंडिकुलर, ए और बी के साथ परपेंडिकुलर। मतलब ए और बी जो सरफेस ए और बी मिलके बनाया वो सरफेस के ऊपर ये एन कैप परपेंडिकुलर होता है, राइट। अच्छा, इसमें साइन आता है साइन थीटा, डॉट में कॉस आता है कॉस थीटा, ओके। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इन दोनों जो वेक्टर है ए और बी, इन दोनों का क्रॉस करेंगे। सपोज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो क्रॉस प्रोडक्ट करने का काफ़ी सारा टेक्निक है। आई विल यूज़ अ टेक्निक कॉल्ड डिटर्मिनेंट टेक्निक। ये मैथ का एक फंडा है डिटर्मिनेंट, उस प्रोसेस में करेंगे तो दैट विल बी मोर इजी, राइट। ए क्रॉस बी पहले लिखा, फिर लंबा सा दाग, इसके ऊपर आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। ये रो है, पता है, दिस हॉरिजॉन्टल कॉल्ड रो एंड दिस आर कॉल्ड कॉलम। पहले ए है, ए वेक्टर, तो ए का जो कंपोनेंट है आई कैप का 2, जे कैप का 3, के कैप का -5, फिर बी का 3 -2 4, ऐसे लिखेंगे। तो ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है। कितना रो है, 3 रो है, 3 कॉलम है। सो दिस इज कॉल्ड 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट इन मैथ्स, ओके। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, टेक्निक देख लो पहले। आई कैप एक ब्रैकेट माइनस जे कैप ब्रैकेट प्लस के कैप ब्रैकेट। ध्यान से देखो प्लीज़, डू कंसंट्रेट। पहले आई कैप जो है, आई कैप का कॉलम और आई कैप का रो हटा दो। आई कैप का कॉलम आई कैप का रो हटा दो, तो सिंपली देखो ये 4 टर्म रहेगा, 3 -5 और ये -2 4,
राइट। आई कैप का रो और कॉलम दोनों को ब्लॉक करो, ब्लॉक करके क्या आता है 3 - 5 2 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, दिस इंटू दिस, 3 इंटू 4 माइनस दिस इंटू दिस। तो 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस दिस इंटू दिस, ये दोनों क्या आएगा -5 इंटू -2 दैट इज +10। गॉट इट। फिर जे कैप है, जे कैप का ये कॉलम ये रो, कॉलम रो इसको ब्लॉक करो, क्या है 2 3 -5 -4। ध्यान से देखो, दिस 1 2 3 -5 -4। सेम प्रोसेस 2 इंटू 4 करो पहले, 4 2 ज़ार 8, एक माइनस दिस इंटू दिस, 5 इंटू -3 सॉरी 3 इंटू -5 दैट इज -15। तो इसके आगे -15 होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, दैट्स वाई 15। ठीक है। फिर के कैप मतलब ये कॉलम बाद ये रो बाद, दिस इंटू दिस 2 इंटू -2 दैट इज -4। अच्छा, फिर माइनस दिस इंटू दिस 3 इंटू 3 दैट इज 9। सो दिस इज द थिंग। ओके, फिर से क्या आया, ये आ गया 2 आई कैप, ये कितना आया 18 5 23 राइट, 23 जे कैप माइनस 9 4 13 के कैप। सो दिस इज द result and eventually this vector is perpendicular to the plane which is formed by A and B। A और B मिलके जो प्लेन बनाया उस प्लेन में ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट। सो नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स रिलेटिंग वेक्टर अलजेब्रा। सो लेट अस सी व्हाट इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। So here is our first numerical. To save time, I have calculated the whole thing. We need to prove this thing. A by sin A equals to B by sin B equal to C by sin C. I think you know this. This one is Lami's theorem, which I have described in lecture 2. Right? Kindly check that. So we have considered this triangle. See the orientation of triangle. A, B are in same direction and C is in opposite direction. So definitely C is the resultant, C equal to A plus B, right? And one thing is that this is A vector and its opposite angle is capital A. It is B vector and its opposite angle is capital B. It is C vector and opposite angle is capital C. Okay, so it's a technique. Angle between A and C, this one is A vector, this one is C vector, this angle is this one, that is B. See the direction, A and C are in opposite direction like this, they are spreading, so the angle is B. Angle between A and B, at the case of this two vectors, A is coming in towards C and B is getting out from C, but here we need to fix a point from where two vector will get out. That's why we have extended this. So this one is A vector, right, and we have taken this angle. आया समझ में? इस तरफ क्या लिया था, एक पॉइंट लिया था जिस तरफ से दोनों वेक्टर डिवाइड होगा, तो इधर भी एक पॉइंट लेंगे जिधर से दोनों वेक्टर डिवाइड होगा। दैट्स वाई दिस एंगल 180 डिग्री माइनस C। फिर BC देखो, BC तो एक सिंगल पॉइंट है जहाँ पर दो वेक्टर इज मार्जिंग, दैट्स वाई सेम रूल, ये वेक्टर आया ये वेक्टर आया, सो दिस एंगल विल बी टेकन दैट इज A। फिर क्या किया, B क्रॉस C, C का वैल्यू ये है, AB बिठा दिया, तो B क्रॉस C इज नॉर्मल, देन B क्रॉस A और B क्रॉस B, ये तो B क्रॉस A आएगा, B क्रॉस B आएगा, B क्रॉस B का वैल्यू क्या होता है 0। क्यों? क्योंकि B क्रॉस का क्या होगा, मॉड ऑफ B साइन 0 डिग्री एन क्या, B तो इसके मतलब दोनों ही तो सेम लाइन में है, इधर भी B इधर भी B, तो कोई तो एंगल नहीं है, इसलिए साइन 0, दैट मीन्स रिजल्ट विल बी 0, राइट। सो B क्रॉस C ये क्या आया, सिंपली B क्रॉस A। इसको आप ब्रेक करेंगे इस फॉर्मेट में, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा, सो B क्रॉस C इक्वल्स टू BC साइन A, मैग्नीट्यूड लिया इसलिए इन कैप नहीं है, BC क्या आया
बी सी और बी और सी के बीच का जो एंगल है दैट इज़ ए, दैट इज़ साइन ए। फिर बी क्रॉस ए मतलब बी ए साइन इन दोनों का एंगल दैट इज़ 180 डिग्री माइनस सी, तो बिठा दिया। तो ये बी कैंसिल हो गया, ये सी है, ये साइन ए है और ए है और साइन 180 डिग्री माइनस सी, ये भी मैंने लेक्चर 2 में बोला था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ये हम मैथ्स में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए साइन 180 डिग्री माइनस समथिंग मतलब साइन समथिंग, राइट। तो ये सिंपली साइन सी हो जाएगा। सो दिस इज़ द फॉर्मेट, साइन सी डिवाइड हो गया, साइन ए इधर आ गया, दिस इज राइट। सो दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली वी कैन शो दिस फॉर्मेट ऑल्सो, ए बाई साइन बी बाई साइन बी। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आएगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ लैमिस थ्योरम यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट बड़ा ही सिंपल सा सम है, ए डॉट बी उसका स्क्वायर, ए क्रॉस बी उसका स्क्वायर, सिंपली ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, इसको प्रूव करना है। तो एक चीज़ देखो, पहले ए और बी उसके बीच में जो एंगल है वी आर कंसिडरिंग दैट एज थीटा। तो LHS लेंगे, LHS मतलब दिस टर्म ए डॉट बी उसका स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी उसका स्क्वायर। अच्छा, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, तो लिख लेंगे ए बी कॉस थीटा उसका स्क्वायर। ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप, इधर स्क्वायर है तो एन कैप नहीं होगा, सिंपली ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। ए बी स्क्वायर, ए बी कॉमन है और स्क्वायर है, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। इधर क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो 1 है, दैट इज सिंपली ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू RHS, हेंस। तो ये एक सिंपल सम था, ठीक है। आई होप ये इजी था। तो नेक्स्ट चलेंगे थर्ड सम की तरफ। सो अगला सम क्या है, दिस वन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस के कैप, मतलब इसमें j कैप नहीं है, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये दोनों का जो बीच का जो एंगल है वो निकालना है, दैट इज दिस वन इज a, दिस वन इज b, ये जो बीच का एंगल है ये निकालना है। याद रखना, एंगल निकालने के लिए द बेस्ट प्रोसेस इज डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो कैसे करेंगे, पहले a डॉट b इक्वल्स टू सिंपली होगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को एक तरफ लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट b बाई मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। एक चांस में वैल्यू पुट करेंगे, फटाफट देखो। a डॉट b मतलब जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में समझाया था, डॉट किसके साथ किसका डॉट होता है, सेम डॉट होता है, i के साथ i का डॉट, j के साथ j और k के साथ k का डॉट होता है, राइट। तो वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। a डॉट b मतलब i के साथ i, इसमें i है 2, इसमें i का कंपोनेंट है 1, सो 2 इंटू 1 दैट इज सिंपली 2। इधर तो j नहीं है, दैट इज़ 0, इधर j है तो j का तो 2 इंटू 0 दैट इज़ 0, इधर k का -1, k का 3, तो 3 इंटू -1 दैट इज़ -3, ओके। फिर मॉड निकालेंगे, मॉड का क्या था, ये जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट। तो मॉड ऑफ a क्या होगा, मॉड ऑफ a मतलब रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस -1 स्क्वायर दैट इज़ रूट ऑफ 5। फिर मॉड ऑफ b क्या होगा, इधर तो 1 है दैट इज़ रूट ऑफ 1 प्लस ये -2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, ये 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, सो सिंपली रूट 14। तो इधर से थीटा क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, दिस वन इज -1 रूट 70, 5 इंटू 14 इज 70, राइट। सो दिस वन इज द angle between A and B vector, right? So that's the end of all this today's menu, and this is the last lecture of vector. I hope you have learned all the series, lecture 1, lecture 2 and lecture 3, and if you have any doubt do comment or you can message me on Instagram also.
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बी सेफ, बी फाइन एंड मी ओन साइनिंग आउट। टाटा, नमस्कार, बाय बाय।